Sir, I'm not able to share my screen. Host disabled. Host right has been shared to you. You can go ahead. Okay, sir. Okay, thank you. So is my screen visible, guys? Yes, ma'am. Okay, so let us start. So my voice is audible and the screen is also visible, right? Yes, ma'am. Okay. Chalo, good evening, guys. Again, welcome to the second class of current affairs. I'm really very excited and sorry, due to some network issue, I joined some minutes late. Okay, chalo. You all are preparing for UPSC, right? So in today's class, we'll start with UPSC. यूपीएससी टर्न्स 100 साल हो गया है. सो दिस इज द सेंटेनरी ईयर, मतलब 100 years हो रहा है, तो इसीलिए उसको सेंटेनरी ईयर बोलते हैं. एंड द यूपीएससी विच इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेशन began on 31st October 2025 and it will continue up to 1st of October 2026. So now we are in the centenary year of UPSC. आप लोग जो एग्जाम दे रहे हैं उसका 100 वर्ष पूरा हो चुका है. ठीक है, चलो. यूपीएससी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एग्जाम देंगे, क्या है थोड़ा जानते हैं उसके बारे में. यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ओके, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 315. ओके, एंड यूपीएससी का जो ड्यूटीज एंड फंक्शंस है, दोज आर discharged under the article 320. So these are some articles which are related with UPSC. Okay, so basically the duties and functions are like the examinations whichever are conducted under UPSC, that should be conducted in an impartial manner. It should be fair, yes. And the UPSC generally it recommends or it publishes the recruitment of Group A and Group B services. Whenever you fill the form, you might have seen UPSC CSC form, you might have seen UPSC Group A, IAS वगैरह Group A में आता है, Group B में भी बहुत सारा है जो Group B में भी आते हैं. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट करती है जो आप लोग लिखते हो, ऐसा नहीं है. यूपीएससी के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, but whatever you are writing, that is civil services examination under UPSC. Okay, so let us see what are the articles which are related to UPSC. Okay, article 315, already we have seen this. It is related with the establishment of the Union and State Service Commission. Okay, it is related with that. Then Article 316 and 317, it is related with the appointment, how much will be the tenure and how the removal process is there. Okay, and you see here one significant member of a PSC. PSC means State Service Commission. Okay, cannot be reappointment after completion of their term. And Article 320, functions of PSC जो है, whatever conduct of exam, recruitment,
promotion, disciplinary matters, all these things, all these are given by the Article 320. Okay. And you can also see another article, Article 321 to 323. Okay. So that is given by extension of functions, expenses, okay, and submitting annual reports to president or governor, whatever, all these things, it is given by them. So I feel that you should be knowing that UPSC exams which you are writing under UPSC Commission, so it has turned 100, so you should be knowing it. Okay, sure. Let us start now the next thing. Let us dive a little bit more. अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर आते हैं कि क्या है एक्चुअली, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इसका जो हेडक्वार्टर्स है ना, ये धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली, हम लोग को पता है। सब यूपीएससी एस्पिरेंट का एक सपना होता है कि धौलपुर हाउस जाएंगे न्यू दिल्ली में, ठीक है। और हम लोग बहुत सारा मतलब एस्पिरेंट्स जो पहले थे अभी ऑफिसर्स है, उन लोग का फोटो देखते हैं यूपीएससी भवन के सामने, तो वो जो है उसको धौलपुर, वो ही है आपका धौलपुर हाउस। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि 1854 में मैकॉली रिपोर्ट एक आया था। ओके, लेट मी राइट हियर, Macaulay report. It introduced a merit-based civil service to replace the patronage system. Okay, merit-based सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया था मैकॉली रिपोर्ट से। फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1855, it was conducted in London, and our first Indian to qualify was Satyendra Nath Tagore. Please be very careful with this. This may be a possible question in your not UPSC but in SSC or RRB or something other government exam. Who was the first Indian to qualify the civil services examination? Okay, at that time. Government of India Act 1919, mainly we have seen this, it provided for creation of Public Service Commission. Be very careful. Government of India Act 1919, पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन जो क्रिएट हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के अंदर ही हुआ था। Then see here, Lee Commission 1924 recommended immediate establishment of a body to protect services from political influence. Okay, political influence ना हो तो इसीलिए ली कमीशन ने रिकमेंड किया था ऐसा एक बॉडी चाहिए। फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, अब ये सब तो जो है ना, ये हुआ आपका रिकमेंडेशन हुआ, ठीक है। ये प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन, मतलब इसके अंदर ये आया था कि अभी एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनना चाहिए, ठीक है। और ये जो है ना, इट वाज द फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है विच वाज कंडक्टेड इन लंदन एंड सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई। उस वक्त ना इसको यूपीएससी नहीं बोलते थे, ठीक है, उस वक्त यूपीएससी नहीं बोलते थे। अब देखो, First Public Service Commission, it was established on 1st of October 1926, chaired by Sir Ross Barker. वो तब तक हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला नहीं था, ठीक है, तो इसीलिए ब्रिटिशर थे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, हम देखते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन
1935, it was created under the Government of India Act, giving Indians a larger administrative role. ये सब थोड़ा बैकग्राउंड है, ठीक है। अब आते हैं यूपीएससी। देखो, ऑल ऑफ ए सडन कुछ भी ऐसा तो नहीं होता कि कुछ भी है अचानक से वो शुरू हो गया। हर चीज के पीछे एक बैकग्राउंड होता है, राइट? ओके। विद एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन जनवरी 26, 1950, द फेडरल पीएससी, ये जो था आपका, ये बन जाता है यूपीएससी विद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब ध्यान करने वाला, अब मन करने वाला बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ओके। और अब देखो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन became UPSC on January 26. Okay. But first Public Service Commission was established on October 1st. ये इसको आप ध्यान दो, अक्टूबर, और इसको ध्यान दो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब हम देखते हैं, ये देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हम लोग अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2026 तक इसको सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसीलिए अक्टूबर हैज अ सिग्निफिकेंस ईयर। ऐसा नहीं है ना कि कोई भी ईयर में आप कर दो, आज से हम मतलब करेंगे, ऐसा नहीं है। 1 अक्टूबर जो लिया गया है उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली वो लोग ने उठा लिया है कि चलो कोई नहीं, आज 1 अक्टूबर है, आज से हम लोग मनाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर होता है आपका चेयरमैन, ठीक है, और बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ऑब्वियसली होंगे। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और until 65 years. ओके। चलो, और बहुत सारे कमिटीज है जो यूपीएससी से रिलेटेड है। लेट अस सी। फर्स्ट इज द कोठारी कमिटी। ये सब आप लोग आई थिंक पॉलिटी में पढ़े होंगे, ओके, मे बी यू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। कोठारी कमिटी, कोठारी कमिटी 1976, it introduced a 3-stage एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अभी जो आप लोग जो एग्जामिनेशन पैटर्न में है 3 स्टेज, वो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कोठारी कमिटी। देन सतीश चंद्र कमिटी 1989 एडेड द ऐसे पेपर। अरे भाई, क्यों ही आप लोग कमिटी बनाए, क्यों ही ये सब किए, एक ही स्टेज में रख देते कि कमिटी पे कमिटी बना रहे हो और ऊपर से एग्जाम को मतलब 3 स्टेज ऐसे ऐड कर रहे हो। क्या चल रहा है भाई? अब हद, अब तो और देखो, कोटा कमिटी 2004, और ठीक है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एआरसी 2004 में होटा कमिटी और एआरसी जो कमीशन है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। बेटा अब तो लो, और सी सेट भी इंट्रोड्यूस हो गया और एथिक्स भी इंट्रोड्यूस हो गया। अब करो, जो करना है करो। अब पहले तो ऑलरेडी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू था। बेटा सतीश चंद्र कमिटी ने ऐड कर दिया ऐसे पेपर, भाई साहब अब बस भी करो। अब कोटा कमिटी और एआरसी ने 2000 और 2004 2005 में सी सेट और एथिक्स सेट कर दिया। अब बेटा कर लो पास। ये लोग भी सोच रहे हैं अब हो सके तो कर लो पास, हमने तो बना दिया है टफ इसको। अब चलो और कुछ देखते हैं। और एक है बसवन कमिटी 2016 में। ये जो एज लिमिट है, सिलेबस है, ट्रांसपेरेंसी है, ये सब में रिव्यू किए थे। चलो बसवन कमिटी थोड़ा ठीक ठाक है, हम लोग के लिए ऐसा नहीं है कि इतना प्रॉब्लमेटिक है। और आप लोग को पता ही होगा जनरल के लिए यूपीएससी का जो आप लोग सीएससी एग्जाम देते हैं 32 years है,
and for OBC I think 3 years relaxations. SC ST के लिए भी ऐसा है, आई एम नॉट श्योर। और PWD और बहुत सारे कैटेगरीज के लिए सब कुछ है। आई एम फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी गाय, सो आई नो अबाउट जनरल मेनली। चलो अब देखते हैं recent technological and process reforms। अब एक्चुअली क्या है ना, देखो पहले जो था हर एक चीज ऑफलाइन होती थी, ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन फॉर्म भरो या ये सब भरो। आप लोग देखते होंगे जब बचपन में, अगर आपकी कोई घर में दीदी होगी या भैया होंगे जो आप लोग से काफी बड़े होंगे, आप लोग देखे होंगे कोई भी एग्जाम का फॉर्म था तो मुझे मतलब वो लोग ऑफलाइन भरते थे, फॉर्म लाते थे, फिर उसको भरते थे, फिर उसको जमा देते, मतलब इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। तो रिसेंट टेक्नोलॉजिकल अगर प्रोसेस में हम लोग बोलते हैं, मतलब तो सबसे है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। ओके, इट इज 100% ऑनलाइन सिंस 2012। और आजकल ना एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म वो भी डिजिटल हो गया। ऑब्वियसली डिजिटल एज है तो डिजिटल ही होगा। डेफ बोलते हैं जिसको, फ्रॉम 2011। ओके, और इनफैक्ट आजकल फेस रिकॉग्निशन भी जरूरी हो गया है क्योंकि इम्पर्सनेशन ना हो। मतलब क्या होता है कि पहले ऐसा होता था, आप लोग को न्यूज आता ही था कि मतलब किसी का फोटो चिपका दिया, एग्जाम कोई और दे रहा है कोई और, मतलब ऐसा टाइप का। तो इसीलिए आजकल अधिक फॉर्म में फेस रिकॉग्निशन को इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। इनफैक्ट आजकल तो लाइव फोटोज भी मतलब लेते हैं जो भी फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी है क्योंकि बहुत सारा चीज हो के रखा है पास्ट में। और ये है डिप्लॉयमेंट ऑफ जैमर्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ड्यूरिंग एग्जाम। तो जैमर लगाया जाता है। जैमर क्या होता है ना, कि आपका जो भी नेटवर्क है, जो भी सिग्नल है उसको जैम कर देते हैं। उस वक्त तक आपको वो हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी इंटरनेट का सुविधा नहीं होगा, वो जैमर लगा देते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली ना अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं प्रतिभा सेतु, ये सबसे अच्छा रिफॉर्म है अभी तक के, ठीक है। अब देखो बहुत लोग ऐसा होता है ना कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, पर इंटरव्यू में उन लोग का नहीं हो पाता है और एज लिमिट खत्म हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि लोग सालों साल लगा देते हैं प्रिपरेशन करने में, और हुआ क्या कि उन लोग को नहीं हो पाता है, फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाता है और एज लिमिट भी खत्म हो जाता है। तो ये है ना जो प्रतिभा सेतु है, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इंटरव्यू क्वालिफाई जो भी कैंडिडेट्स है उन लोग को ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप लोग का ना हो, बस जस्ट मैं बस बोल रही हूँ कि अगर कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो पाया, फाइनली उनका नहीं हो पाया, ठीक है, मतलब फाइनली मेरिट लिस्ट में जो फाइनल वाला लिस्ट है उसमें नाम नहीं आ पाया, ठीक है, इंटरव्यू तक है पर फाइनली नाम नहीं आ पाया, तो भी उन लोग के लिए प्रतिभा सेतु में एनरोल करना होता है। और उसके बाद क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक बच्चा यूपीएससी इंटरव्यू तक गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका हो या ना हो, इट डजेंट मीन कि वो पढ़ाई में खराब है या उसका प्रिपरेशन खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होना ना होना वो फाइनल उस दिन जो हुआ ना इंटरव्यू में, वो थोड़ा टाइम का एक डिसीजन आपका पूरा जो प्रिपरेशन है उसको जज नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो प्रतिभा सेतु है ये इनिशिएटिव, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। मैम अब ये प्रतिभा सेतु वाला फिर से समझा दीजिए तो। हाँ, ये प्रतिभा सेतु जो है हम लोग को प्रीलिम्स है, मेंस है, ठीक है, और फिर इंटरव्यू है। मान लो आज मतलब करण ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू गए, और गलती से ऐसा हुआ, कभी ना हो, मतलब भगवान कभी ना करे, बट अगर गलती से ऐसा हुआ कि आपका इंटरव्यू में
चूज अब नहीं हो पाए। ठीक है, इंटरव्यू का जो फाइनली इंटरव्यू भी खत्म हो गया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया और आपका एज लिमिट खत्म हो गया, अटेम्प्ट खत्म हो गया, अभी आपका क्या होगा? अभी आपको कुछ और ऑल्टरनेटिव जॉब ढूंढना होगा। आप इतना साल अपना प्रिपरेशन में बिता दिए हैं और अभी आपको एक ऑल्टरनेटिव जॉब ढूंढने में बहुत दिक्कत होगा। तो ये जो प्रतिभा सेतु है ना, ये क्या करता है ना, उसमें आप अगर इंटरव्यू तक गए हैं और फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है, आप वहां पे एनरोल कर सकते हैं। मतलब आप वहां पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए कि मैं मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाइड, मेंस में इतना इतना मार्क्स है। उन लोग के पास तो डाटाबेस रहेगा ही। फिर जो भी ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहता है कि इक्विवेलेंट टू, ऐसा नहीं है कि आईएएस का अपॉर्चुनिटी ही रहेगा या आईपीएस का, पर इक्विवेलेंट, ऐसा नहीं है कि चपरासी का जॉब देंगे, नो नो नो, अच्छा वाला जॉब ही वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में देंगे और वो लोग हाई प्रायोरिटी कैंडिडेट्स रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा बाद में कि अगर आपने लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो ऐसा हो रहा है कि मैं तो बेकार बैठा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो इंटरव्यू तक जाता है उसको नॉलेज है, पर कुछ इधर उधर के वजह से मे बी लक फेवर नहीं किया, इसीलिए उसका नहीं क्वालिफाई हुआ। पर फिर भी वहां पे आपका जो प्रिपरेशन का इतना टाइम है, एनर्जी है, पेशेंस है, वेस्ट नहीं होगा। ओके, दैट इज द प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव। इज इट क्लियर करण? यस मैम। ओके, मैम चलो नाउ, इसमें जिसका अटेम्प्ट खत्म हो गया वो सिर्फ उसको सिर्फ मिलता है ना? नहीं मतलब आप अगर इंटरव्यू क्वालिफाइड है तो, मतलब आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और आपका अटेम्प्ट खत्म हो गया या एज भी आपका खत्म हो गया तो, मतलब आप और दोबारा एग्जाम लिखने के एलिजिबल नहीं हो, पर आपको इंटरव्यू, आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो, आप इंटरव्यू दिए हो, वो भी एक क्राइटेरिया है। ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है है मैम। कि मतलब कोई भी जिसका एज लिमिट नहीं है उसको दे दिया, ऐसा नहीं है, जो इंटरव्यू में पहुंचा है उसको। चलो अब देखते हैं, पीएम मोदी रिलीजेस ₹100 कोमेमोरेटिव कॉइन्स एंड पोस्टल स्टैम्प। अब ₹100 का कॉइन्स, ये क्या है भाई? चलो अब इसीलिए हम लोग देखते हैं पहले कोमेमोरेटिव कॉइन्स क्या होता है और ये पोस्टल स्टैम्प जो बोल रहा है, पहले वो होता क्या है वो देखते हैं। Commemorative coins are issued to honor important events, personalities, or milestones. Okay, so they are not mainly, वो लोग होता है ना फॉर कलेक्शन एंड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। मैं एग्जांपल दूंगी तब आपको आ जाएगा समझ में। दे आर ऑफन मेड विथ मेटल्स, जनरली सिल्वर से बनाया जाता है। दे आर इशूड अंडर द कॉइनेज एक्ट 2011। ओके, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी, हम लोग जो कॉइन्स यूज करते हैं ना, पैसा मतलब जो कॉइन्स होता है वो कॉइन नहीं है। इट्स ओनली टू ऑनर सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज और माइलस्टोन, और ये सिर्फ मतलब कलेक्शंस वगैरह के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि डेली यूज आप कर सकते हो उससे। ठीक है, अभी पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प्स आर इशूड बाय इंडियन पोस्ट, ऑब्वियसली पोस्टल है तो इंडियन पोस्ट ही इसको इशू करेगी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। They serve as tools of cultural and historical documentation. ठीक है, they also highlight national achievements and personalities. ऐसा नहीं है कि कोई ये नॉर्मल स्टैम्प है जो हम लोग यूज करते हैं, वैसा नहीं है। ठीक है, अभी देखो, अब न्यूज में ये है कि 100 रुपीज का वो कॉइन मोदी लॉन्च किए हैं, मोदी जी लॉन्च किया, रिलीज किए हैं या लॉन्च किया। ठीक है, पर ये हम लोग के यूज के लिए नहीं है, तो हम लोग को पता चल गया कोमेमोरेटिव कॉइन्स और पोस्टल स्टैम्प्स क्या होता है। अब देखते हैं ये जो 100 रुपीज वाला जो हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स में, क्यों देख रहे हैं। चलो, रीसेंट 100 रुपी कोमेमोरेटिव कॉइन लॉन्चेस, अभी कब कब हुआ है ये लॉन्च हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो ये देखते हैं रीसेंट एकदम, February 16, 2026, अभी रीसेंट का बात है। सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ ऑल चिक्की स्क्रिप्ट न्यू दिल्ली में हुआ था। ये जो लॉन्च हुआ था ना, न्यू दिल्ली में हुआ था। अभी ऑल चिक्की स्क्रिप्ट क्या होता है?
ये इट इज ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ संथाली लैंग्वेज। संथाली एक लैंग्वेज है, ठीक है। ये सेंटेनरी मीन्स 100, ओके। सो February 16, 2026 में लॉन्च हुआ था ऑल चिक्की स्क्रिप्ट का सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के लिए। अब हम लोग को जानना है ये जो संथाली लैंग्वेज है ना, ये एक्चुअली इट वाज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट मी राइट हियर, इन 2003 Santali was formally included in 8th schedule। 8th schedule मतलब आपको पता है ना, आपने पॉलिटी में पढ़ा है, यस मैम। ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ये नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया, ओके, संथाली को। तो ये जो ऑल चिक्की स्क्रिप्ट है, इसको लॉन्च किया, इसका ये है ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ संथाली लैंग्वेज। देन नवंबर 19, 2025, हम लोग बैकवर्ड जर्नी कर रहे हैं। नवंबर 19, 2025, इट वाज द बर्थ सेंटेनरी ऑफ सत्या साई बाबा, हम लोग मानते हैं उनको। ये हुआ था पुट्टपार्थी, एक जगह का नाम है आंध्र प्रदेश में, ओके। देन October 1, 2025, ये हुआ है आरएसएस का एक 100 ईयर्स के लिए इन न्यू दिल्ली, ओके। फिर आपका आता है ये आसाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो कॉइन्स है ना, इनके नाम पे लॉन्च हुआ था, ये रीजंस की वजह से लॉन्च हुआ था ये डेट्स में, ठीक है। September 13, बर्थ सेंटेनरी ऑफ डॉक्टर भूपेन हजारिका इन गुवाहाटी, ये गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। फिर आपका August 7 में हुआ था बर्थ सेंटेनरी ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। MS स्वामीनाथन कौन थे? MS स्वामीनाथन कौन थे? आपको ग्रीन पता है? फादर ऑफ ग्रीन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। यस 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 यस, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यस। देन फिर December 25, ये 2024 का है, ठीक है, 25 का नहीं है, 26 का भी नहीं है। बर्थ सेंटेनरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, मध्य प्रदेश में हुआ था, खजुराहो में, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इंडियाज कल्चरल रेनाइसेंस, या जो भी बोलो, कोई रेनाइसेंस बोलता है, कोई रेनाइसा बोलता है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट राम स्टेचू। अब बीजेपी गवर्नमेंट है, थोड़ा हिंदुत्व ज्यादा ये लोग करते हैं, तो इसीलिए राम स्टेचू के बारे में मैंने आप लोग को बताया, और ये वर्ल्ड का सबसे मतलब टॉलेस्ट राम स्टेचू है, ठीक है। चलो अब देखते ये है। ऑन नवंबर 28 on 28th of November 2025, PM Modi unveiled a 77-foot tall bronze statue। एग्जाम में आ सकता है, कौन सा मटेरियल से बना है? ब्रॉन्ज से बना है, ऑफ लॉर्ड रामा। और कहाँ पे हुआ है? गोवा का साउदर्न पार्ट में एक जगह है जिसका नाम है कैनाकोना, ओके। और व्हाई इट वाज लॉन्च, एक्चुअली व्हाई इट वाज अनवेल, मतलब उसको क्यों किया गया था? इट वाज द 550th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ श्री संस्थान गोकर्ण पड़तागली जीवोत्तम मठ, ठीक है। ये एक मठ है जिसका 550th एनिवर्सरी था, ठीक है। उसी दौरान इसको अनवील किया गया, ओके। अब ये मठ के बारे में ना, ये एक्चुअली ये ऐसा आप लोग को लगता होगा ना कि यही मठ पे क्यों, ऐसा क्या है कि यही मठ पे हुआ, ऐसा कुछ तो स्पेशल होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ हुए इसको ऐसे ही कर देंगे, नो नो नो, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। इसका
सिग्निफिकेंस ये है ना, ये जो मठ है, मठ का एक लेगेसी है। देखो यहाँ पे ये जो मठ है, इट फॉलोज देवता वेदांता ट्रेडिशन। ये सब ना आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं, एंशियंट हिस्ट्री में। देवता वेदांता ट्रेडिशन एंड हैज बीन अ पिलर ऑफ सरस्वत कम्युनिटी फॉर ओवर 5 centuries। तो इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस है। तो इसका जो 550th एनिवर्सरी था, तो उसमें ये अनवेल किया गया राम जी का स्टैचू, जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। अब यहाँ पे देखो ये स्टैचू है, ठीक है, ये है आपका स्टैचू, यहाँ पे लिखा है, और ये डिक्लेयर्ड द टॉलेस्ट स्टैचू इन एशिया एंड द वर्ल्ड। ओके, सेट विद इन अ डेवलप रामायण थीम पार्क। ओके, मोदी जी ने बोला कि इसके आसपास ना, जो राम जी का स्टैचू है, इसके आसपास एक रामायण थीम का पार्क डेवलप किया जाएगा। अभी ऑन द प्रोसेस है। तो बीच में राम का स्टैचू रहेंगे, राम जी का, और अगल बगल जो है वो रामायण थीम का एक मतलब गार्डन बोलो या पार्क बोलो, वहां पे होगा। अब ये है कि हु इज द स्कल्प्टर, मतलब किसने बनाया है। इसको ना थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कल्प्टर है, मैं क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बोल रही हूँ आपको। अनिल राम सुतर, you know, statue of unity in Gujarat of Vallabhbhai Yes, Patel, ma'am. yes, you know. So Yes, he ma'am. is the same artist, he is the same artist behind statue of unity। उन्होंने ही बनाया है, तो इसीलिए ये सिग्निफाई करता है कि मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन आपका आए, ठीक है, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है ना, हमको पता है। और ये अभी लेटेस्ट न्यूज में है कि देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैं बोलती हूँ। ये कभी नहीं पूछेगा कि नवंबर 28 में हुआ था, 2025 में हुआ था, किसने अनवेल किया। जनरली ना ये सब नहीं पूछेंगे, ठीक है। बस ये पूछ सकते हैं कि मठ का नाम क्या है। मैं आपको बताती हूँ इससे मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कैसे होते हैं। अगर एसएससी आरआरबी एनटीपीसी ये सब है, ठीक है, बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट जो स्टैचू है राम जी का, वो कौन सा मठ का एनिवर्सरी में मतलब अनवेल किया गया, ठीक है। या बोलेंगे कि पटतगाली मठ जो है उसका मतलब कौन सा ट्रेडिशन से लिंक्ड है जो हमने देखा, ठीक है। और जो स्टैचू बना है, वो राम जी का जो स्टैचू है वो कौन सा मटेरियल से बना है, ब्रॉन्ज। और बोलेंगे कि स्टैचू ये जो स्कल्प्टर है वो अनिल राम सुतर, वो किससे मतलब वो कौन सा और स्टैचू बनाए हैं, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, स्टैचू जो ये मतलब जैसे स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, कि राम जी का ये टॉलेस्ट स्टेचू है इन इंडिया, ठीक है, होगा ये एशिया और वर्ल्ड। आपको मतलब कौन सा ठीक है, मतलब कौन सा करेक्ट है। ब्रॉन्ज के जगह पे कुछ और मेटल्स डाल देंगे, ठीक है, गोवा के जगह पे कुछ और डाल देंगे जगह पे, वैसा मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या इससे रिलेटेड आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछना है, मैं बता रही हूँ कैसे होगा। कि अब देखो ये डिजाइन किए हैं जो स्कल्प्टर, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी किए हैं। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे रिलेटेड है, वल्लभ भाई पटेल से। अब क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में वल्लभ भाई पटेल से, ठीक है। हो सकता है आपको वल्लभ भाई पटेल जी का कुछ जो भी रिलेटेड है
उनका जो भी मूवमेंट से रिलेटेड है या जो भी उनका वर्क्स है या उन्होंने अगर जो भी किया है अपने लाइफ से उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो जनरली ना करंट अफेयर्स को वैसे स्टैटिक पार्ट से वैसे जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिए हो गया, नहीं, इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आप खुद भी इमेजिन करना शुरू करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं थडा कम्युनिटी इन मणिपुर। आपको आपको पता है एनआरसी के बारे में, राइट? वी एवरी वन ऑफ अस नो अबाउट एनआरसी। रिसेंटली ये न्यूज में है, ये एक कम्युनिटी है थदाओ जो है, ये एक मतलब ट्राइब है, ये इंडिजिनियस एक कम्युनिटी है रिसाइडिंग इन हिली रीजन्स बॉर्डरिंग द इम्फॉल वैली इन मणिपुर। मणिपुर के है, इनको चिलिया, कुकी, किहिन, तेजांग, तिरुवन ये सब से भी जानते हैं लोग। ठीक है, वो लोग चीन या थाडो लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये न्यूज में क्यों आए, कुछ तो वजह होगा ना। न्यूज में ना ये जो थाडो कम्युनिटी के लोग हैं ना, ये दे हैव एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनआरसी। पहले इन लोग का सपोर्ट नहीं था, अभी ये लोग ने सपोर्ट दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नॉन नागा ट्राइब इन मणिपुर। और हमेशा ध्यान रखना इन यूपीएससी स्पेशली और एसएससी वगैरह में ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट से बहुत क्वेश्चंस आपको कॉमन दिख जाएंगे, तो मे बी ये यूजफुल हो आपके लिए एग्जाम में। ओके, चलो लेट अस सी द नेक्स्ट। या दिस इज अ वेरी वेरी रीसेंट न्यूज, मतलब एकदम एकदम मतलब लेटेस्ट है ये न्यूज। ठीक है, मेनका गुरुस्वामी, मेनका गुरुस्वामी, यू कैन सी द फोटो, दिस इज मेनका गुरुस्वामी। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओपनली क्वेयर एमपी हु चेंज द लॉ नाउ गोज टू मेक वन। इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ। पहले देखते हैं गुरुस्वामी जी है कौन। मेनका गुरुस्वामी, शी इज अ सीनियर Supreme Court advocate. Okay, she played a pivotal role in the landmark Section 377 case of 2018। अब ये केस क्या होता है, ठीक है, केस क्या होता है कि एक्चुअली सेक्शन 377 वाज स्ट्रक डाउन, मतलब इसको हटाया गया था। इट criminalized the homosexuality in India। आपको पता है LGBTQ जो है उसको पहले माना जाता था, मतलब इट वाज ए क्रिमिनल। ओके, होमोसेक्सुअलिटी को एक क्रिमिनल एक्ट मतलब माना जाता था। तो उस समय 2018 का जो ये है, ये उसी पैनल में थी, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इसको हटाने में, इसको हटाने में। ओके, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था, ठीक है, इट डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी एंड ट्रांसफॉर्म्ड LGBTQ प्लस राइट्स इन इंडिया। तो इसी लैंडमार्क जजमेंट की वजह से होमोसेक्सुअलिटी और LGBTQ का जो राइट्स है वो डिक्रिमिनलाइज हुआ था। पहले इसको एक क्राइम माना जाता था। ओके, अब ठीक है, चलो इतना तक तो ठीक है, गुरुस्वामी भी थी उसमें, ओके फाइन, वेरी गुड। अब ये न्यूज में क्यों है एक्चुअली? गुरुस्वामी एंट्री मार्क अ हिस्टोरिक मोमेंट, मतलब एक्चुअली वो MP बनी है, ठीक है। शी शी इज द फर्स्ट इंडिया's ओपनली LGBTQ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब उन्होंने अपना जो आइडेंटिटी है वो ओपनली मतलब बताया है। शी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर ओपननेस अबाउट हर आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, चेंज द लॉ, मतलब वो एडवोकेट थी, वो पैनल मेंबर थी, तो वो लॉ को चेंज करती है। नाउ गोज टू मेक वन, मतलब क्या है, एडवोकेट से वो अभी MP बनने जा रही है, इसी का मतलब है। ठीक है, पहले एडवोकेट थी इसीलिए चेंज लॉ हुआ, ये वाला लॉ चेंज हो गया, अभी वो MP में खड़ी हुई है। तो जब भी
हर एंट्री इनटू द पार्लियामेंट क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। किसके लिए? LGBTQ के लिए माइलस्टोन होगा, क्योंकि उन लोग का रिप्रेजेंटेशन होगा इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है। और her presence will also sharpen the legislative focus on constitutional rights and minority protection. And main thing is she has opened her identity. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है openly queer MP, queer MP. She has openly said her identity. Okay, so it's a very big thing and it's a very recent news, latest news है ये। चलो अब देखते हैं अरे ग्लोबल टीचर प्राइज। देखो टीचर बहुत लोग होते हैं पर हर किसी को प्राइज नहीं मिलता है। अब ये ग्लोबल टीचर प्राइज क्या होता है पहले ये जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड। First of all, let us see what is a global teacher prize, then we will see what happened actually. Global Teacher Prize is it was established in 2000 it was established in 2014, ठीक है, by Verkif Foundation in collaboration with UNESCO to raise the status of teachers। मतलब ये टीचर्स को दिया जाता था, ये 2014 में एस्टैब्लिश हुआ in collaboration with UNESCO by Verkif Foundation। It is an annual award presented by GEMS Education and it is often referred as Nobel Prize for Teacher। आप लोग को पता है Nobel Prize? So अगर कोई बोलता है Nobel Prize for Teacher, ये ग्लोबल टीचर प्राइज को ही it is often referred as Nobel Prize for Teaching। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों है, let us see। अब रिसेंटली ये न्यूज में इसीलिए है कि इंडियन टीचर रूबल नागी, अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट अ मिनट। इंडियन टीचर रूबल नागी won the Global Teacher Prize 2026. Okay, she has won the Global Teacher Prize 2026 and she has received $1 million, okay, in Dubai। ये दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ था एंड शी हैज रिसीव्ड $1 million। अब देखो ये फोटो देखो, आप देख सकते हैं ये रूबल नगी जी है और ये दुबई में इनको अवार्ड मिल रहा है। अब ये कहाँ पे, मतलब कौन सा चीज था जहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था। ठीक है, तो पहले आपको जानना है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इज एन एनुअल ग्लोबल प्लेटफॉर्म हेल्ड एट दुबई, यूएई में, dedicated to shaping the future of governance, innovation and sustainable development। It was established in 2013, it convenes world's leaders, ministers, policymakers, and experts to address pressing global challenges. What is the theme? This is important. What is the theme of 2026? Shaping future governments. Okay. अब रूबल नागी जी को मिलता है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, $1 million इन दुबई एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जिसका थीम था शेपिंग फ्यूचर जेनरेशंस। इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब शी वाज चूजन ओवर 5000 नॉमिनेशंस फ्रॉम 139 कंट्रीज। सो जस्ट इमेजिन कितना टफ था। ऐसा नहीं है कि रैंडमली उनको दे दिया गया, नो नो नो, इट्स अ वेरी बिग एंड प्रेस्टिजियस थिंग। सोचो 5000 नॉमिनेशन।
जिसको जो चीज को माना जाता है आपका नोबेल प्राइज, ठीक है, जिसको माना जाता है नोबेल प्राइज, आप इमेजिन करो उसके लिए 5,000 नॉमिनेशन है। तो वो जो नॉमिनेशंस होंगे फ्रॉम 139 कंट्रीज, वो लोग भी तो तगड़े प्लेयर ही होंगे ना, मतलब तगड़े टीचर्स ही होंगे। तो उन सब में से हमारी इंडिया की रूबल नागी ने विन किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। She has set up more than 800 educational centers across India in over 100 low-income communities and villages. ठीक है, अब मेन चीज अभी देखेंगे उनका अप्रोच क्या था। एडुकेशन दिए हैं लो इनकम कम्युनिटीज विलेजेस में, ठीक है, 800 एजुकेशन सेंटर से भी ज्यादा उनका है। पर उनका एक्चुअली था क्या? हर अप्रोच वाज लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है? अबैंडन वॉल्स आर टर्न्ड इनटू ओपन क्लासरूम। जो भी वॉल्स अबैंडन है, देखो कोई भी वॉल जो ऐसे खाली पड़ा है, वही वो क्लासरूम बना देती थी। क्योंकि देखो जो गरीब के बच्चे है ना, मैं मतलब गरीब मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन बोल रही हूँ, वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन तो आजकल बोलना भी सही नहीं होगा, क्योंकि आजकल तो फेक बिलो पॉवर्टी लाइन लोग के भी पीपल आ गए। बिलो पॉवर्टी लाइन का जो मैं बोल रही हूँ उसका मतलब ऐसा है जो रोड साइड में रहते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, मैं उन लोग का बात कर रही हूँ। उन लोग के पास ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूं, क्योंकि स्कूल जाने से क्या होगा? वो लोग पढ़ेंगे तो उन्हीं लोग का पैसा खर्चा होगा। उससे अच्छा कि अगर बच्चा कमाएगा तो पेट तो भरेगा। देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हो जाता है रोटी, जो हम लोग को चाहिए, हम लोग का खाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उस समय जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा ना, तुम खाना के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो उस समय ना स्कूल जाना पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ये सब ना दिमाग में नहीं आता है। तो इसीलिए रूबल नगी जी ने क्या किया, जो वॉल्स है ना उसी पे वो, जो एबंडेंट वॉल्स है जो कोई काम के नहीं है, ठीक है, उसी पे वो ओपन क्लासरूम की। जस्ट सी द इनोवेशन, इनोवेटिव माइंड शी हैड, ताकि बच्चे को स्कूल जाने का जरूरत ही ना पड़े। मैं हर एक वॉल ही आपका क्लासरूम बना दे रही हूँ, मैं हर एक वॉल पे ही आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या जरूरत है स्कूल जाने का? मतलब, और लोगों को उससे प्रेरणा मिला, अच्छा ऐसा है, एक्साइटमेंट हुए। तो बहुत सारे एनरोलमेंट्स भी हुए हैं स्कूल्स में, पर इट वाज लाइक अ मोटिवेशन। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड अप्रोच, और इट्स नॉट गुड एक्चुअली, इट्स अ माइंड ब्लोइंग, एंड रियली वी शुड सल्यूट हर। ओके, ऐसा अप्रोच, एंड इंडिया नीड्स people like Rubal Nagi. Okay, she really deserves it. चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉन्ग विंस बाफ्टा। ये बॉन्ग क्या है, बाफ्टा क्या है, देखते हैं। मणिपुरी फिल्म बॉन्ग, एक बॉन्ग नाम का मणिपुरी फिल्म है, won the बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन इन दिस कैटेगरी। इट इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म, पहला इंडियन फिल्म है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये डायरेक्ट की थी लक्ष्मी प्रिया देवी, और इट वाज इन मणिपुरी लैंग्वेज। सी, शी इज लक्ष्मी प्रिया देवी। Okay, when she received it, she is Lakshmi Priya Devi. BAFTA means it stands for British Academy of Films and Television. It is often considered equivalent to Oscar. आपको पता ही है ऑस्कर क्या है। So this BAFTA award is considered equivalent to Oscar. So आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये पहला इंडियन फिल्म है इस कैटेगरी में विन करने के लिए, और वो भी एक मणिपुरी लैंग्वेज की फिल्म है, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस। अब आते हैं
एक इम्पॉर्टेंट चीज पे आप ये देख रहे हैं, ये हमारी प्रेसिडेंट है मुर्मू जी। और ये जो आप देख रहे हैं एक स्टैचू, ये है सी राजा गोपालाचारी। ये है सी राजा गोपालाचारी। ये न्यूज क्या है एक्चुअली? President Draupadi Murmu unveiled the bust of C. Rajagopalachari in राष्ट्रपति भवन। पहले राष्ट्रपति भवन में ना एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस का मतलब क्या बोले, एक स्टैचू, मतलब पूरा स्टैचू तो नहीं, हाफ स्टैचू, तो वो था। अब ना इनको हटा के, इनको रिप्लेस करके सी राजा गोपालचारी का लगाया गया है। ठीक है। अब सी राजा गोपालाचारी के बारे में हम लोग को जानना है, क्योंकि ये तो लेटेस्ट न्यूज है ना, तो ये नहीं आएगा कि मतलब वो किसने अनवेल किया ये सब नहीं आएगा आप लोग को। ये न्यूज से सिग्निफिकेंस है कि सी राजा गोपालाचारी के बारे में आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो जानते हैं उनके बारे में। राजा गोपालाचारी सपोर्टेड रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अभी हम लोग यही सब पढ़ रहे हैं ना, रॉलेट सत्याग्रह 1919। नॉन कोऑपरेशन ये कब स्टार्ट हुआ था बता सकते हैं आप? 1920। हम लोग कल ही ये पढ़े हैं। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ही गेव अप हिज लीगल प्रैक्टिस एंड कमिटेड हिमसेल्फ फुल्ली टू एनसीएम। अब इससे कैसा क्वेश्चन आ सकता है? सी राजा गोपालाचारी का मूर्ति अनवेल हुआ है। ठीक है, अब सी राजा गोपालाचारी रॉलेट सत्याग्रह नॉन कोऑपरेशन से रिलेटेड है, तो आपका क्वेश्चन आ सकता है रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। ठीक है, या इनके बारे में भी आ सकता है स्टेटमेंट वाइज। तो इससे हम रिलेट कर रहे हैं स्टैटिक पोर्शन को। और अप्रैल 1930 में एक सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च होता है, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे। वो लीड किए थे साउथ इंडिया में। ठीक है, इन्होंने लीड किया था ट्रिची से वेदरनियम तक। ये तांजोर कोस्ट में है। ठीक है, और एक है राजा जी फॉर्मूला बोलते हैं। ये एक्चुअली ना हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है, बट स्टिल लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस। it is actually it was a proposal for Congress and Muslim League. Okay, it was a proposal for Congress and Muslim League. ये इन्होंने दिया था, इसीलिए इसको राजा जी फॉर्मूला बोलते हैं। 1944 में दिया था। ये क्या था एक्चुअली? द प्लान रिक्वायर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टू कोऑपरेट with Indian National Congress in forming a provisional national government, provided Indian National Congress abide by a plebiscite on the question of Pakistan. ये हम लोग जब इंडिपेंडेंस जब होगा उससे पहले ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक जान लो राजा जी फॉर्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये बोला गया था कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कोऑपरेट मतलब करना चाहिए, और मतलब करना पड़ेगा अगर एक नेशनल गवर्नमेंट प्रोविजनली बनाना होगा। और ये प्लेबिसाइट जो है ना, हम इसके बारे में बात करेंगे इन हिस्ट्री क्लास। ओके, जब पाकिस्तान फॉर्म हो रहा था, क्या हुआ था, उस टाइम हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो यू हैव टू नो वन थिंग, ये भी हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी के लिए भी जान लो कि ही वॉज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल and also last Governor General of India before India became a republic in 1950. So 1948 से 1950 तक ये पहला और सिर्फ और लास्ट, मतलब ये पहला इंडियन थे और इकलौते इंडियन थे जो गवर्नर
जनरल बने थे, ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब इसके बाद और कोई गवर्नर जनरल नहीं बने, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर राजा गोपालाचारी। और आपको ये जो है ना, ये सब राजा जी फॉर्मूला हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे, ये भी देखेंगे, पर आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन आ सकता है, एसएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ये जो राजा गोपालचारी का मूर्ति स्टैचू वहां पे अनवेल हुआ है, ठीक है, किसको रिप्लेस किया गया है। तो आपका आंसर ये है एडविन लुटियंस, वो आर्किटेक्ट थे, ठीक है। यूपीएससी में ये एज अ स्टेटमेंट, वन ऑफ द स्टेटमेंट रह सकता है, पर इसके ऊपर क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनेंगे कि किसको रिप्लेस किया है। तो उसमें हो सकता है आपका, अगर स्टैटिक पार्ट जोड़ो, रॉलेट सत्याग्रह, एनसीएम से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपका, मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। और ऊपर से राजा जी फॉर्मूला के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और इसके बारे में आ सकता है, मतलब इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री इफ यू कनेक्ट this news with the static portion. Okay, so that's all for today's class. Anyone, any doubt? If you have, kindly share with me. अगर कुछ भी डाउट है आप मुझे बता सकते हैं। No doubt, ma'am. So okay then, thank you. Good night everyone. Thank you, ma'am. Take care.